Good morning, Standard 10. Today we are going to read our supplementary book, and its book is Footprints Without Foot. तो स्टैंडर्ड 10 आज हम लोग अपनी इंग्लिश लिटरेचर की सप्लीमेंट्री बुक जो हमारी है, जिसका टाइटल है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसकी चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और आज अपनी चैप्टर 1 में अपनी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुत्ता जो होता है ट्रिकी, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाने के कारण मोटा हो जाता है, जिससे उसकी मालकिन चिंतित हो जाती है। तो आइए अपनी कहानी को अब हम लोग आगे मूव करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्व्ड राउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was not an interesting object and ignored him. I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan sloped the food into the bowl. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high and speech eating. Every dog knew that he will fall behind the others. He was liable to have some competition for the last part of his meal. Now we will understand the meaning of this particular paragraph. अस्पताल में घर के कुत्तों ने दौड़कर मुझे घेर लिया। ट्रिकी ने सुस्त आंखों से उस शोर मचा रहे समूह को देखा और जब उसे गलीचे पर रखा गया, यानी आगे रखा गया, वह एकदम शांत लेट गया। दूसरे कुत्तों ने कुछ पल उसे सूंघने के बाद यह निर्णय लिया कि यह एक नीरस प्राणी है और उसे अनदेखा कर दिया। मैंने उसका बिस्तर एक गर्म खुले संदूक में लगा दिया, जिसके बगल के संदूक में दूसरे कुत्ते सोते थे। 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी, सिवाय खूब पानी के खाने को कुछ भी नहीं दिया, यानी केवल पानी पिलाया, खाने को कुछ भी नहीं दिया। दूसरे दिन के समाप्त होने पर अपने चारों तरफ उसने कुछ रुचि दिखाई और तीसरे दिन उसने हल्की आवाज़ें की जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों को सुना। जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी दौड़ता हुआ बाहर आया और उसे तुरंत ही जो नामक शिकारी कुत्ते तथा उसके दोस्तों द्वारा घेर लिया गया। उसे लुढ़कने तथा पूर्ण निरीक्षण करने के बाद कुत्ते वहाँ से बाग में चले गए। ट्रिकी उनके पीछे चल पड़ा, धीरे धीरे लुढ़कता हुआ वो अपने मोटापे के साथ। उस दिन बाद में मैं भोजन के समय उपस्थित था। ट्रिस्टन को प्यालों में भोजन डालते हुए मैंने देखा। वहाँ पहले की तरह ही भागा दौड़ी के बाद तेज गति से खाने की आवाज़ें आ रही थी। प्रत्येक कुत्ता यह जानता था कि यदि वह पिछड़ गया तो अपने अंतिम हिस्से के लिए उसे मुकाबला करना पड़ सकता है। Now, second paragraph. When they had finished, Tricky took a walk round the shining ball, licking casually inside 1 or 2 of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him joshingly this way towards it. From then on, his progress was rapid. He had no mediclinical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friends' screamings. He discovered the joy of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes.
He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crews, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. All the while, Mrs. Pamphlet hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat warm accordingly to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. The word convalescing seemed to do something to Miss Pamphlet. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my parents and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. Now, meaning. जब उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया, ट्रिकी चमकते हुए कटोरे के चारों ओर घूमा तथा 1 या 2 कटोरे को लापरवाही से चाटा। अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया और मैं उस कटोरे की तरफ धक्का मुक्की करते हुए बढ़ते हुए उसे देख रहा था। उस दिन से उसमें तेजी से सुधार होने लगा। उसे किसी प्रकार की औषधीय चिकित्सा नहीं दी गई, बल्कि पूरे दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता था, उनके मित्रवत झगड़ों में शामिल होता था। वह उस समूह का एक स्वीकार्य सदस्य बन चुका था, यानी उस कुत्ते के ग्रुप ने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। एक असामान्य रेशमी छोटा प्राणी उन झबरेदार कुत्तों के समूह में था। भोजन के दौरान वह अपने हिस्से के लिए बाघ के समान लड़ता तथा रात में पुराने मुर्गी बारों में चूहों का शिकार किया करता था। यानी उस कुत्ते की कंपनी को ट्रिकी अब इंजॉय करने लगा था। इस दौरान श्रीमती पैम्फ्रेट बार बार आकर उसकी लिए चिंता जाहिर करती थी और ताज़े समाचार के लिए दिन में दर्जनों बार मुझे फ़ोन किया करती थी। मैं उनके प्रश्नों को, जैसे कि उसके गद्दे नियमित रूप से बदले जा रहे हैं या नहीं, वह मौसम के अनुसार कोट पहनता है या नहीं, टाल जाया करता था। परंतु अब मैं उसे बताने योग्य था कि वह एक छोटा प्राणी खतरे से बाहर था और तेजी से ठीक हो रहा है। ठीक होने का मतलब वह मिसेस पैम्फ्रेट को यह बात अच्छी लगी कि वो जल्दी से रिकवर हो रहा है। उसने एक बार में 2 दर्जन ताज़े अंडे ट्रिकी की मजबूती के लिए लाने शुरू कर दिए। यानी कि मिसेस पैम्फ्रेट ने सोचा कि और ट्रिकी बहुत जल्दी से रिकवर हो जाए, तो उसने एक दिन में 2 दर्जन अंडे लाने शुरू कर दिए। कुछ समय तक मैंने तथा मेरे भागीदारों ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए, परंतु जब शराब की बोतलें आने लगी तो घर के हालात की सच्ची संभावनाएं स्पष्ट होने लगी। यह ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने के लिए था। दोपहर का भोजन हमारे लिए एक समारोह का अवसर बन गया था। शराब के 2 गिलास भोजन से पहले और कई भोजन के बाद, यानी मिसेस पैम्फ्रेट के दिए हुए खानों का ये लोग लुत्फ उठा रहे थे, डॉक्टर्स और उनके सहयोगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी कहानी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपनी 3rd क्लास में 3rd पार्ट वीडियो में कहानी हम लोग की ख़त्म हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स।